औरत ने बड़ा जुल्म किया। उस औरत नाल जुल्म है किया उन्हें कि वो औरत उन्होंने बच्चों नहीं मिलन देती, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਚਲੀ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ ਦੱਸੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਆਈਡੀਅਲ ਸ਼ਖਸ ਹੈ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਅੱਛਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਾਹ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਬੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਆਦਮੀ ਹੈ। मैंने कहा जी मामून रशीद जड़ा है ये 4 भरा ने, ठीक है ना। मैं क्या पता ना तुहानू, एक दा नाम सरदार है, एक दा नाम मुहम्मद असलम है, एक दा नाम हारून रशीद है और एक दा नाम मामून रशीद उर्फ टोनी है। सही, अच्छा ठीक हो गया जी। मेरे कहा जी ए हीरा मंडी अपना लाहौर ਜਿਹਦੀ ਪਟਵਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਇਹ 4 ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੀਆਂ 5 ਭੈਣਾਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਭਰਾ ਸਰਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੀਰਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਦੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਦਾ ਅਸਲਮ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਰਾਨਾ ਫਿਲਮ ਦੀ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੀ, ਗਿਰਾਨਾ ਫਿਲਮ ਉਹਨੇ ਬਣਾਈ, ਮੁਸਰਤ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਹਰ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਔਰ ਅਸਲਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੀ। ਮੁਹੰਮਦ ਅਸਲਮ ਉਹਦਾ ਨਾਮ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਵੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਹਾरून ਰਸ਼ੀਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵਕੀਮ ਹੈ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੋਸ਼ ਬਣ ਕੇ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਪਨਾਹ ਲਈ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਉਹ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਯਹੂਦੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਜੂਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਮਾਮੂਨ ਰਸ਼ੀਦ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਮੁਜਾਹਦ, ਸਫਦਰ ਟੈਂਟਾਂ ਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੀ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਸਮਗਲਰ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਕੰਜਰ ਇਹ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਜਿਆਦਾ ਯੂਸ ਵੀ ਨਾ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਸੁਣੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਸੀ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਮੁਜਾਹਦ। ਮਾਮੂਨ ਰਸ਼ੀਦ ਦੀ ਇੱਕ ਭੈਣ ਜਿਹਨੇ ਗੁੱਡੋ ਫਿਲਮ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਮਾਮੂਨ ਰਸ਼ੀਦ ਜਿਹੜਾ ਕੈਸਰ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਸੀ ਆਦਮੀ ਜਿਹਦੀ ਭੈਣ ਨੇ ਜ਼ਮੂਰਤ ਰੰਜਨ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਭੈਣ ਨੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਇੱਕ ਸੀ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਹਿਦ, ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਬਹਿਰੀਨ ਸੀ, ਗੁੱਡੀ ਨਾਂ ਦੀ। ਉਹਦੀ ਇਹ ਬੇਟੀ ਹੈ ਮਾਮੂਨ ਰਸ਼ੀਦ ਦੀ। ਇਹ ਜੀ ਭਾਂਜੀ ਹੈ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਦੀ। ਕੀ ਹੈ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਨਾਮ ਨਿਹਾਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਂਜੀ। ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਮਾਹਮ ਸ਼ਾਹਿਦ। ਇਹਦਾ ਨਿਕਨੇਮ ਮਾਡਲ ਐਕਟਰੈਸ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜੀ ਉਹ ਹੈ ਕੀ ਨਾਂ ਲੈਂਦਾ, ਮਾਡਲ ਹੈ, ਐਕਟਰੈਸ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਮਿਸਰੀ ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਇਹਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਡਰਾਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਈ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਗੱਲ ਦੀ। ਇਹ ਜੀ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਭਾਂਜੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਦਾ ਨਾਮ ਬਹਿਰੀਨ ਹੈ ਉਰਫ ਗੁੱਡੀ ਹੈ, ਹੀਰਾ ਮੰਡੀ ਦੀ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਟਵਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ। ਕੁੱਲਾ ਅਬਦੁਲ ਕਰੀਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਿਆ। हीरा मंडी को उसका पता होता है, हीरा मंडी का पता होता है उस औरत को जो खुद रही होती है उधर। यार हीरा मंडी यार कौन है यार? है जी ये मामून रशीद ते मुजाहिदीन दी फैमिली है जी। ते फैमिली कहदी है जी सिद्धू जट साहब दी। हुण समझ आई? ए खत्मे नबूवत दे मुजाहिद, इन्हां नूं शर्म ते गैरत नहीं आंदी कि ए किसे नूं बदनाम करन वास्ते ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੀ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਖਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਜੱਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਾਲ ਜੀ ਆਈਡੀ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਉਹ ਲਾਲ ਜੀ ਆਈਡੀ ਵਾਲਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਮੀਰ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਵੀ ਇਹਦੀ ਭਾਜੀ ਲੱਗੇ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਮੀਰ ਦੀ ਭਾਜੀ ਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਮੈਂ ਸਾਹਿਬਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਈ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈ। ਰਾਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਕਿਹਦੀ ਭਾਂਜੀ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਅੱਬੇ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਦੱਸੋ। ਇਹਦੇ ਅੱਬੇ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਾਹਿਦ ਹੈ, ਸਲਮਾਨ ਸ਼ਾਹਿਦ। ਸਲਮਾਨ ਸ਼ਾਹਿਦ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਾਹਿਦ ਖਾਨ ਹੈ। ਸਲਮਾਨ ਸ਼ਾਹਿਦ ਖਾਨ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਇਹਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਲਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਲਮਾਨ ਸ਼ਾਹਿਦ ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਬੇ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ,
ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਸ਼ਾਹਿਦ ਖਾਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਪ ਦਾ ਨਾਂ ਇਹ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਚ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸੀ, ਹੁਣੇ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਖੋਲੋ ਹਾਂ ਗੂਗਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਲਮਾਨ ਸ਼ਾਹਿਦ ਖਾਨ ਉਹਦੇ ਅੱਬੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ ਉਂਝੇ ਤਲਕ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਾਲ ਕੇ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਇਲਾਜ ਬਸ ਕਰਾ ਕੇ ਆਪ ਝੂਠ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਸਲਮਾਨ ਸ਼ਾਹਿਦ ਇਹਦੇ ਅੱਬੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਜਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਪਿਓ ਦੀ ਆਈਡੀ। ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤਾ पता है? मेरी बहन, मैं एक बात कहना चाहता हूँ जी अब देखे, मैं इनको जानती हूँ, मैं इस घर में मेरी इसकी जो मेरी पहली शादी हुई थी मामून रशीद के साथ हुई थी। अब मेरी बात समझ रही है? अच्छा, मेरा जो पहला निकाह हुआ था वो मामून रशीद के साथ हुआ था। मामून अच्छा। रशीद वगैरह ने ये कुवैत में होता था अपनी बहन कौकब के साथ, जो उर्फ बट्टी के नाम से है, वो अमेरिका में मुकीम तुम्हारा है। कोई कसूर नहीं, तुम में गश्ती ही हो, गश्ती। ये गश्ती तुम्हारा की लगी कोई है, कसूर भांजी का नहीं, बचाव तुम्हें का बड़ी गश्ती हो, भांजी लगी गश्ती हुई हो है, ना, गश्तियां ऐसे बचाव का करती बड़ी हैं। भांजी लगी गश्ती हुई है। ए देखो जी हुण मिर्चा तो देखो पूरा कितों तुम्हें तक गश्ती लगियां हो, ने, गश्ती की मिर्चा बच्ची देखो कितों तक लगियां ने भांजी दियां। पूरे ब्रॉड पे ए जी मशहूर है, मुजाहिद दी भांजी, तुम्हारा तो अहमद पूरे नज़ीर दी भांजी, ए जे मुजाहिद खत्मे नबूवत शाहद दी भांजी, ए जे जी केदी भांजी अपना ए जड़ा मीर आया सी ओदी भांजी, ए केदी भांजी है, ए भांजी हैगी है सिद्धू जट दी। हुण समझ आई है? हुण समझ आई कश्मीर साहब? जी 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 जी, हूँ समझ आई है मैनू। मिर्जा गुलाम अहमद साहब के साथ क्या ताल्लुक है इन औरत का, वो भी बता दे थोड़ा सा। हैं? जी जी फरमाएं, क्या कह रहे हैं आप? कहते जी गुलाम अहमद ना की ताल्लुक है? जी बताएं भाई, क्या कह रहे हैं आप? ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ? ਲਾਂਤੀ ਔਰਤੇ ਇਹ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਲਾਂਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਲਾਂਤੀ ਨਾਲੇ ਹੈ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਵੀ ਖਤਮੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਨਬੂਵਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਵੀ ਬਗੈਰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਤੋਂ ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋ। ਗੰਦੀਆਂ। ਬਗੈਰ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕੱਢਣੀ ਖਤਮੇ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਨਬੂਵਤ ਬੜਾ ਸ਼ਰੀਫ ਸਮਝਦਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਨੰਬਰ ਦੀ ਖਤਮੇ ਹਰਾਮ ਦੀ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਔਰਤ ਕੰਮ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕਰ ਰਹੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ। ਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਬੜਾ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਗੰਦੇ ਲੋਕੋ, ਗੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੈਸੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਨਾ ਇਸਲਾਮ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਹੋਈ ਗੰਦੇ, ਉਮੇ ਤੇਰੀ ਹਰਕਤ ਹੀ ਗੰਦੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਪੇਸ਼ हाँ जी, ए जी जी खत्मे नबूवत दे मुजाहिद, ए जी खत्मे नबूवत दी औकात, एर औरतां नूं बदनाम करना। मेरा ते ए महाज सी कश्मीर साहब कि मैं थुकिया भी नहीं इन्हां दी दौलत दे उत्ते ते ना इन्हां दे उत्ते। ठीक है, ए रिश्ते करवाउण वाली सी मॉडल टाउन दी नज़ीरा, जिन्हें बड़ी इन्हां दी गया जी कोई च इन्हां दे कारोबार ते फलाना ते टमकाना ते गलत तस्वीरां दिखा के इन्होंने जिस वक्त मेरी शादी हुई उस तो बाद जो मेरे पता चलिया, मैं अज तक इन्हां दी कदी शक्ल नहीं देखी और मैं अपने बच्चों को कदी मिलन तक नहीं दिता सी इन्हां नूं। ठीक है, उमर बाप ते किचड़ सुकड़ गए। ऐसी रखेल ओदी अपना सिद्धू जट ते यूसफी आ सामने हुण प्यो दे ते। मेरा यहाँ पे एक सवाल है, मेरी बहन, आप सब बाकी भाई जो इधर सब मेरा बैठे हुए हैं, मेरा एक सवाल है जी। अगर फॉर एग्जांपल, पहली तो बात है आपने जो कहा कि ये सिद्धू जट की है, मीर की है, पहली बात है मुझे नहीं पता उनकी भांजी है या नहीं है। वो मीर तो इनकार करके गया है और आपने उसको नीचे फेंक दिया है। यही काम जो ना बाबों के पुजारी करते हैं, बंदे का पॉइंट सुनते नहीं है, वो नीचे फेंक देते हैं। तो मेरे ख्याल में आपका म्यार उनसे बेहतर होना चाहिए, उनका पॉइंट अब आप सुन लें, अब आप सुन लें कि आपको बात का पूरा नहीं होता, पहले बात पूरी सुन लिया करें। कल सिद्धू जट आया मेरे पास, उसने आकर कहा कि मामून रशीद की बीवी जो थी वो बड़ी गलत औरत थी, उसने उसको उसके बच्चों के साथ नहीं मिलने दिया और वो बड़ी इस तरह की औरत थी। मैंने कहा जी आप मामून रशीद को कैसे जानते हैं? कहता जी मॉडल टाउन में मेरे साथ होता था और मेरा वो आइडियल है और मैं उसके बड़ा करीब हूँ और हमारी बड़ी मतलब इस तरह से है, तो उसकी बीवी जो है वो इस तरह है। मैंने कहा जी ठीक हो क्या? अब मैंने कहा कि मामून रशीद जो हैं ये 4 भाई हैं, एक का नाम सरदार था, एक का नाम मोहम्मद असलम था, एक का नाम हारून रशीद था और एक का नाम मामून रशीद। और मेरी शादी हुई थी मामून रशीद के साथ, जिन्होंने बताया नहीं था कि वो कंजर है, उससे बताया नहीं था कि मेरी जो है वो जमूरत फैमिली से है। एक रिश्ते करवाने वाली ने मॉडल टाउन की रिश्ता करवाया और मेरी शादी हुई। ठीक हो क्या?
اور پھر میں نے علیحدگی اختیار کی جس وقت ہمیں پتہ چلا کہ یہ ہیرا منڈی سے بلانگ کرتا ہے اور اس کی بہن فلم ایکٹر زمرد ہے. ہمیں جب یہ ساری چیزیں پتہ چلی تو میں اپنے بچوں کو بھی نہیں ملنے دیا, میں الگ ہو گئی اور میں نے ادریس کے ساتھ شادی کی جو اپنا ستارہ کیمیکل کا مالک ہے, ستارہ انڈسٹری گروپ کا. ٹھیک ہو گیا. اب جب اس نے میرے اوپر یہ کیچڑ اچھالا تو میں نے اس کی اوقات بتائی, اور یہ جو ہے یہ مامون رشید کی سکی بھانجی ہے. مامون رشید کی جو سب سے چھوٹی بہن ہے مہرین, اس کا نام گڈی ہے, ہیرا ماؤنٹ سے بلانگ کرتی تھی, ڈانسر تھی. اس نے ایک انجینئر کے ساتھ شادی کی تھی جس کا نام ہے شاہد خان. یہ ماہم جو ہے شاہد خان کی بیٹی ہے. یہ ماڈل بھی ہے, ایکٹریس بھی ہے اور ڈانسر بھی ہے. اور مجاہدین جس کا نام لیتے ہیں صفدر ٹینٹو والا, ٹھیک ہے, ان کے گھر کے پاس رانو جو عبد الکریم اس کے چچا کا بیٹا ہے, کلا کلا اس کو کہتے ہیں, ہیرا منڈی میں جا کے اس کے باہر سے پوچھ رہے کہ جی ٹکسالی گیٹ کے باہر آپ کھڑے ہو جائے. انہیں کہ جی عبد الکریم کلے کا گھر, نائلہ, رانو اس کی بیٹیاں جو ڈانسر ہے وہاں پر, اور اس کے بعد جو یہ ہے اپنا پٹواری فیملی. جس سے مرضی جا کے پوچھے, یہ ہے جی مجاہدین ختم نبوت کے نام نہاد جو اسلام کو بدنام کرتی ہے, خواتین کو بدنام کرتی ہے. لیبل لگایا ہے انہوں نے کہ ہم ختم نبوت کے مجاہد ہیں. یہ ان کی اوقات ہے. یہ سدھو جٹ جو ہے نا, یہ میسج نیچے کر رہے ہیں کہ میں نے کچھ نہیں کیا, مجھے معاف کر دے, یہ سب چھوڑ دیا. پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں. دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ میں آپ کو حوالہ دے رہی ہوں ہیرا منڈی لاہور, السلام وہاں علیکم. پر پٹواری فیملی کا آپ جا کے پوچھ لیں. اچھا سسٹر, آپ سے سوال یہ ہے کہ یہ ساری بیک گراؤنڈ یہ بھی ہے, لیکن اب یہ سب کچھ کرنے کا کیا؟ دیکھیں سعد بھائی میری بات سنیں, یہ آپ کی ڈگنیٹی, ایک عورت, ایک سیکنڈ میری بات سنیں. میری بہن, آپ ایک عورت جس نے اپنی پوری زندگی ایک حق کے ساتھ گزارنے کی کوشش کی, جس نے کبھی کسی مرد سے 1 روپیہ کسی کے ساتھ مدد دی ہوگی, کسی کو لی نہیں ہوگی, ٹھیک ہے, جس نے اپنی بچیوں کو اعلیٰ اچھی تعلیم دلوا کر تصویر آپ نے لگائی ہوئی ہے ہیرا منڈی کی, یار آپ ایک اسے کہہ منٹ, رہی ہیں یار بدنام بات تو کرنے دیں پوری یار, اب کیوں کرتے ہیں ایسا؟ صبر کریں. میں اچھا جی, ابو مجھے جس وقت ام رباب نے اپنی پوری لائف کو حق اور سچ کے ساتھ گزارنے کی کوشش کی, ٹھیک ہے, کبھی یہ لے کر آتے ہیں علی شیر گجر کو, کبھی یہ لے کر آتے ہیں کسی کو یہ ٹیلی فون کر کے یہ اس طرح کی حرکات کرتے ہیں. ان کو 25 سال ہو گئے یہ سب کچھ کرتے ہوئے. اور یہ کون ہے اس کے پیچھے؟ صفدر ٹینٹو والا. یہ پیچھے کون ہے؟ مامون رشید کی فیملی. یہ کنجر, میں نے کیا کہا تھا کہ یہ کنجر مافیا, یہ ڈرگ مافیا, یہ لینڈ مافیا. میں نے کسی کا کیا بگاڑا؟ میں نے کسی کا کیا بگاڑا؟ اب انہوں نے جب مامون رشید کی بات کی تو میں نے تو بتانا تھا کہ یہ جی مامون رشید جو آپ کا آئیڈیل ہے. اب مجھے کوئی چیلنج کرے, مجھے لے کر آؤ یہاں پر مامون رشید کو, یہاں پر لے کر آؤ وہاں پر اس کی فیملی کو, جس اپنے رپورٹر کے جا کے وہاں پر پتہ کر لے. میں آپ کہہ رہی ہوں کہ مامون رشید کون ہے. پھر آپ اسے بدنام کر رہی ہیں نا سدھو. چلیں یہ سدھو صاحب آئے ہیں. جی میں سدھو سے بات کیوں کروں؟ سدھو جائے اپنے آئیڈیل کے پاس, میں کیوں بات کروں؟ کشمیر صاحب ایک سیکنڈ کر رہی ہیں بدنام نے سدھو نے. میں نے کہا کہ سدھو اپنے جائے مامون رشید کو لگائے, لے کے براڈ لگائے. کیوں کشمیر میں غلط کہہ رہی ہوں کہ صحیح کہہ رہی ہوں؟ سسٹر ایک ریکویسٹ سن لیں پلیز. سعد بھائی میری بات سنیں ایک سیکنڈ. انہوں نے 2.5 سال, میں نے کبھی مامون رشید کی بہن کی بات کی؟ میں نے مامون رشید کی بھانجی کی بات کی؟ میں نے کبھی نہیں کی. میں نے مامون رشید کی فیملی کو ڈسکس کیا؟ نہیں کیا. انہوں نے آ کے یہ پنگا لیا ہے. صفدر ٹینٹو والے کا میں نے کبھی نام نہیں لیا تھا کہ وہ ہمارے محلے میں ہے یا وہ اس طرح کا, مجھے ضرورت نہیں تھی. کس نے کہا؟ یوسفی نے. اب یوسفی کی بہن اس کی رکھیل ہے. ام رباب کو یہ چیلنج کوئی پوری دنیا میں نہیں کر سکتا. بالکل ام رباب ایک برینڈ ہے, الحمدللہ مسلمان. وہ سدھو کی بہن نہیں ہے, وہ سندھی کو بھانجی نہیں ہے ام رباب. آپ کا جو ہے نا وہ نیریٹو, یہ یوسفی بڑا دلہ آدمی ہے. یہ کشمیر صاحب ہولڈ کر لیں, کشمیر صاحب پلیز ہولڈ کر لیں.
सिस्टर ये जो तस्वीर है इसको अगर आप टेम्परेरीली भी हटा दें तो आपकी मेहरबानी होगी। देखिए मेरी यार बात सुने, यार एक इन्होंने सेकंड कोई मैं नकली हटा देती तस्वीरें तो नहीं ना लगाई, यूट्यूब यार की आप है, खामोश कम्युनिटी रहें कश्मीर गाइडलाइन हो। साहब प्लीज। अरे भाईजान मुझे खामोश कर रहे हैं, लेकिन चलो हटा दिया उन्होंने। देखें एक अपना एक मेरी बात दीनदार सुने एक कश्मीर दीनदार साहब, खातून है उन्हें मैंने ट्रिगर किया गया है तो आप यार वो उसमें यार उन्होंने कोई गलत नहीं लगाई, यार वो गलत नहीं लगाई तस्वीर, वो यूट्यूब बात की है ठीक यार। है, वो उन्हें ट्रिगर किया गया है लेकिन आप उसमें मेरी बात ऐड सुने, ना करें। मेरी बात सुने जी, मैंने लगाई है मामून रशीद मुजाहिदीन के आइडियल की कश्मीर तेरी भैन दी लत्तां चुक के सिद्धू जट ते ये जी और आया है भैन ये दी मामून बुद्धि रशीद आवे वाला किसी ना करें, कुत्ती मार ये दिया बच्चा। जिहाद कर रहा है, अजनबी ये जिहाद अजनबी देखे साहब जी, ये ये जी देखे जी मुजाहिदीन जिहाद है, का खत्मे मुजाहिद, नबूवत नाम ने खत्मे हाथ नबूवत का मुजाहिदीन, झंडा गाड़ने वाले। मुजाहिदीन खत्मे नबूवत। हाँ, ये मुफ्ती मुबशर अहमद नजीर के कश्मीर स्टूडेंट। साहब कश्मीर ये साहब जी शागिर्द हैं मुफ्ती मुबशर के, ये शागिर्द हैं अहमद जिया नजीर अमीनी के। के, ये शागिर्द हैं आबर नजीर के, ये कश्मीर साहब शागिर्द हैं अगर आप शाहिद के, दो साइडों ये का शागिर्द हैं डाल रहे आकाश हैं मलिक के, तो ये आप शागिर्द नहीं हैं कर रहे। उसके गुज्जर 22 के। और मेरी बात तो सुन लेना, मुझे बोलने का मौका तो दें। दो साइडों में अगर अनाज पैदा हो गया है तो उसमें देखिए मेरी बात सुने, साद भाई मेरी बात अल्लाह का सुनिए, खौफ करें। नाद नहीं पैदा हुआ, आपको नहीं पता। ये साद लोग भाई एक आपको मिनट, भाई वो मुझे साद समझ भाई नहीं एक आ मिनट, रहा। साद भाई पता जरा नहीं म्यूट हुआ। लगाई। जी 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 फिर उम्मे रुबाब ने आज तक किसी के ऊपर कोई हरफ कभी नहीं किसी के बारे में कहा, लेकिन अगर उसको कोई कहेगा तो वो हकीकत बताएगी कि नहीं बताएगी, बताए मुझे। वो अंडरस्टैंडेबल है, आपकी नौबत ये यहाँ जब मिसाल के तौर पर कि अगर कोई शख्स जो है वो बताएगा उम्मे रुबाब के बारे में, तो वो तो फिर उम्मे रुबाब तो फिर वैसी नहीं है, फिर जो हकीकत होगी वो सामने लेकर आएगी या नहीं लेकर आएगी, आप मुझे ये बताएं। सही बात है। ठीक है, हाँ, अब तो बात साथ है ये। साथ मुझे एक बात बताइए, एक शख्स आके मुझे वो कहता है कि मामून रशीद जो है वो उसका बहुत करीबी है, मामून रशीद जो है वो हमारा बंदा है, वो हमारा आइडियल है। अब जब मामून रशीद जिनका आइडियल है, अब मामून रशीद जो है, फिर मैंने मुजाहिदीन को तो बताना है ना कि ये आपकी भांजी है, ये मामून रशीद है। अब जाए और जाके पता करें, जिसने पता करना करे पता, खुले आप बता रही हूँ, चैलेंज कर रही हूँ, अगर मैं गलत हूँ ये आपके जूते मेरा सर। मुझे कश्मीर साहब मुझे बताएं कि मैं गलत हूँ यहाँ पर या सही हूँ। नहीं जी नहीं, आप बिल्कुल दुरुस्त कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं बात कर सकती हूँ? मैं हाँ बात कर हाँ सकती हीर हूँ? बोले आप। जी हीर साहब, मैं जहाँ तक मुझे थोड़ा सा सारा क्यों मैं बैठ के सुन रही थी, और जब तक आपको कुछ समझ नहीं आ रही थी तो फिर बोलना जो है ना आपका फजूल जाएगा। लेकिन मुझे जहाँ तक मुझे समझ आई है आपके सारे किस्से की, मैं बैठ के सुन रही थी कि कुछ नाम नहाल बंदे कि जो आपसे बुग़्ज़ रखते हैं, हसद करते हैं, और उन्होंने आपके खिलाफ एक महाज खड़ा किया और उसका आप रिप्लाई दे रही हैं, जहाँ तक मैं समझी हूँ। जी बिल्कुल ऐसा ही है। मैं ये आपको इल्जाम लगाते हैं, हीर इल्जाम लगाते हैं। जो हसद कश्मीर साहब, करते हैं, उनको बोलने देते जो हसद करते हैं, जो आपको देखना नहीं चाहते, तो ज़ाहिर है फिर वो कोई ना कोई ऐसी हीर मेरी बात सुनो। निकालेंगे जो आपको बदनाम करेंगी। जी हीर साहब मेरी बात लेट सुनिए, मी कंप्लीट। कल जो आपको एक खत्मे नबूवत नहीं का देखिए मैं डिटेल में जा रहा, मैं थोड़ी सी बात करना चाह रही हूँ, प्लीज अगर मुझे बात करने दें। मैं पहले आप मेरी बात सुन लें, फिर आप कीजिएगा ताकि आपको कुछ चीजें वाज़ेह हो जाए, ठीक हो गया? कल एक खत्मे नबूवत का, यानी 2.5 साल से जो कुछ आपने कहा वो तो हो रहा है, ठीक है। कल खत्मे नबूवत पे एक मुजाहिद है, बहुत बड़ा मुजाहिद है, वो तशरीफ़ लाया, और जब तशरीफ़ लाया तो मैं बात कर रही थी अपने माशरे के ऊपर और अपने माशरे की जो बुराइयां हैं उसके ऊपर, कि हम लोग एक औरत को उसकी वो जॉब करने के लिए निकली है, वो कितनी शराफत के साथ निकली है, लेकिन हम उसकी किसी चीज़ को नहीं जानते कि वो किस घर की है, वो कौन है, लेकिन बदकिरदारी का सर्टिफिकेट हम उसको दे देते हैं, उसको हम जानते हैं, हालांकि हमें पता कुछ नहीं होता। तो ये बड़ी गलत बात है, इसकी बड़ी सजा है, ये नहीं होना चाहिए। बेशक इतने में एक शख्स आया जो बहुत बड़ा मुजाहिद है, खत्मे नबूवत नाम नेहाद, उसने आकर तो मुझे कहा कि जी एक आदमी मेरा बहुत बड़ा आइडियल है,
وہ آدمی بڑا با کردار، ایک بڑا میرا مطلب، میں نے کہا جی کون؟ وہ کہتا جی مامون رشید اس کا نام ہے، اس کی بیوی بڑی غلط عورت تھی جس نے اس سے بچے نہیں ملنے دیے، اس کے ساتھ اس نے بڑی زیادتی کی، اور مامون رشید میرے ساتھ ماڈل ٹاؤن میں ہوتا تھا اور میرا وہ بڑا قریبی دوست تھا. ٹھیک ہو کیا؟ اب مامون رشید جس کے ساتھ میری پہلی شادی ہوئی تھی، جو میری پہلی شادی ہوئی تھی دھوکے کے ساتھ، اس وقت یہ کویت میں ہوتا تھا، اور میری شادی انہوں نے پہلے غلط تصویر دکھائی جو رشتے والی تھی. ایک ماہ میں انہوں نے خوب جھانسا دے کر، میرے والدین ایک بڑے شریف لوگ تھے، انہوں نے باتوانی میں سب سے بڑی تھی اور میری شادی کر دی. جب پتہ چلا تو پتہ چلا کہ یہ تو ہیرا منڈی کے کنجر ہے، یہ فلم ایکٹر زمرد کا بھائی ہے، یہ جو ہے یہ مختاری بیگم جس نے بشیر کاظمی کے ساتھ شادی کی تھی، مختاری بیگم یہ اس کا بھائی ہے. جب یہ ساری چیزیں کھلی میں نے اپنے بچے پکڑے میں الگ ہو کے میں نے ڈیورس لے کر میں نے ادریس نامی آدمی جو ستارہ گروپ آف انڈسٹری کا مالک ہے، میں نے اس کے ساتھ شادی کر لی. ٹھیک ہے. اب یہ ختم نبوت کے مجاہد 25 سال سے ان کے جو صفدر ٹینٹو والا یہ جو کنجر فیملی تھی، ان کا مطلب تھا کہ یہ میری بیٹیاں لے لیں اور ان سے اپنا دھندا کروائیں جیسے اپنی بیٹیوں سے کرواتے ہیں. جیسے ابھی میں نے تصویریں لگائی، ابھی میں نے جو سدھو کی بھانجی کی تصویریں لگائی آپ کے سامنے ننگی کی. اب جب انہوں نے، میں نے اپنی بیٹیاں نہیں دی اور میں کینیڈا میں سیٹل ہو گئے، یہاں پر بھی آ کر انہوں نے جو کچھ یہ کر رہی ہیں نا، یہ لائیووں کے اوپر 2.5 سال سے جو آپ دیکھ رہے ہیں، 25 سال ہو گئے یہ سب کچھ کرتے ہوئے. یار تم تو چپ کر جا. 25 سال ہو گئے ان کو یہ سب کچھ کرتے ہوئے، 25 سال. اور میں نے یہ سب کچھ برداشت کیا. میں نے سب کچھ جو ہے نا اپنے اللہ کے لیے، میں نے اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلوائی، میں نے اپنے بچوں کو ان کے قریب نہیں پھٹکنے دیا ان کنجر مافیا اور لینڈ مافیا کے. یہ میرا قصور ہے، بالکل بالکل. اب یہ میرا قصور ہے. اور یہ جو بھانجی ہے یہ کس کی ہے جی؟ یہ ہے سدھو جٹ کی، جس کا آئیڈیل کون ہے یہ جی آپ اس سے اب پوچھ لیں. یہ تصویر ہٹا دیں، تصویر میں ہٹا دیں، آپ سے ریکویسٹ ہے پلیز. میری بات تو سن لینا. مجھے یہ جی اس کی والدہ کا نام مہرین ہے گڈی عرف. اس کا جو باپ ہے وہ سب لوگوں نے انجینئر ہے دیکھ لیا، شاہد. لوگوں نے اسکرین شاٹ بھی لے لیے، نہ کرے ایسا. جی اب میری بات سنیں، آپ یوٹیوب پہ ڈالیں میسری ڈرامے کی ایکٹر کو، آپ اس کے بارے میں ان کا بھی ڈالیں آپ کو. ان کا ہاں جی بولو کیا کہہ رہے ہیں. آپ کے ماڈریٹر مجھے میوٹ کر رہے ہیں اور پھر مجھے بتاؤ تم اب اپنی براڈ لگاؤ وہاں پر بولو جا کے. میں نے تمہیں کہا تھا نا، موقف دینے آئے ہوں نا. میری بات میں نے کہا اپنی بھانجی لگاؤ وہاں پر، مجاہدین کو بلاؤ وہاں لے کے جاؤ. اچھا میرا موقف تو سن لیں. جی مجھے ضرورت نہیں ہے تمہارے موقف کی، میں نے سن لیا تھا تمہارا موقف کل. کہاں سنا تھا میں نے تمہارا موقف سن لیا، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں میں ایک عزت دار شہری ہوں. میری بات سنو، یہ تمہاری بھانجی ہے عزت دار شہری، مامون رشید کے رشتہ دار. تم کہتے ہو تم عزت دار، مامون رشید کے رشتہ دار، تم عزت دار. اچھا امید صاحبہ ایک چھوٹا سا مجھے ٹائم، مامون رشید کے رشتہ دار تم عزت دار. ختم نبوت کے مجاہد جو کہتی ہے صفدر ٹینٹو والے کی رکھیل. میں نے بتا دیا صفدر ٹینٹو والا کون تھا اور کون اس کا رکھیل تھا. میرے آج تم نے مامون رشید کا تعارف پوچھتے تھے نا، آج مامون رشید کا تعارف بھی کروا دیا. میں عزت دار گرانے کی تھی جو گند کو بھی گند نہیں کہتی تھی اور وہ خاموش تھی. آج تم لوگوں نے کہا کہ ہماری اوقات بتاؤ مجاہدو، آج تمہاری اوقات میں نے بتا دی ہے. بالکل. آج ایک بندہ جائے ہیرا منڈی میں جا کے ایک لفظ میرا چیک کرے وہاں جا کر کہ میں سچ ہوں یا جھوٹ ہوں. آج اس کی بیٹی شاہد کی، ماہم شاہد جو ہے عرف خوشبو، یہ 2 بہنیں اور 1 بھائی اس کا ینگ تھا میری بیٹی مریم کی عمر کا، جس کی ہارٹ اٹیک کے ساتھ ڈیتھ ہو گئی. بہت ینگ تھا، مطلب میرا خیال 21 سال کا تھا یا 20 سال کا. تو اچانک وہ مطلب اس کو پیزا کھانے کے بعد اس کو اٹیک ہوا تو اتفاق ہاسپٹل میں اس کی ڈیتھ ہو گئی. ٹھیک ہے. اچھا امی بہن، آج تک میں نے کشمیر میں نے کبھی کسی کو ڈسکس نہیں کیا تھا، کبھی بھی. میرے ساتھ جتنا بھی ظلم ہوا میں نے آج تک کبھی نہیں بولا. اور میری بیٹیوں کے لیے جس طرح مجھے اپنی قربانیاں دینی پڑی ہیں،
कनाडा में, पाकिस्तान में, इस माफिया ने मेरी जान नहीं छोड़ी, लेकिन ऐसे ही अल्लाह है। ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने मुझे हर जगह पे साबित कदम रखा। बिल्कुल बिल्कुल, ये तंग करते हैं आपको, मैं समझ गया सारी बात। अब मुझे अब समझ आई है कि इन्होंने तंग किया। अच्छा, ये सिद्धू जट की बात यार ये तो सुन लेना कश्मीर भाई, आप अच्छा, मुझे जानते हैं ना, मेरी बात जी जी, चलो जी। नहीं दिया जा रहा। अच्छा चले, उम्मे से हम कहते हैं कि उम्मे बहन सुन ले सिद्धू अगर जट आप की कह बात। रहे हैं, सब ये कह रहे हैं सब मैं सुन इन्वॉल्व नहीं हूँ किसी चीज में, उम्मे सुन ले क्या कहते हैं। जी जी, बोले बोले सिद्धू साहब आप। भाईजान इनका कोई मॉडरेटर है? अच्छा, मॉडरेटर कौन है? उम्मे मॉडरेटर कौन है यार, ना करे ना भाई। कह रहा हूँ ये देखे फिर ये पता नहीं कौन लगा हुआ है। उम्मे मॉडरेटर चेक करें जरा कौन है। अच्छा, उम्मे बहन मैं आपकी सारी वीडियो लीक कर दूंगा, जो वॉशरूम की भी है, सारी आपकी लीक करूंगा। यार फिर अजनबी ना रोती करो। रहो। उम्मे जरा मुझे मॉडरेटर बनाना। करूँ मैं लीक? साहब बाज आ जाएं प्लीज, बाज आ जाए। अजनबी तुम शरारत कर रहे हो भाई, ये नहीं ऐसे ना हेल्पफुल हो रही करो। ना, ये बात हेल्पफुल नहीं हो रही। हकीकत बता रहा हूँ। उम्मे ये बहन कितनी आप गंदी आपको क्या पता है? उम्मे बहन मैं ये आपका इस आपको क्या ब्राड पता का है जो हकीकत मकसद का? था वो तो पूरा हो गया है, तो अब बात तो मुझसे मेरा होगी। अब मौक़िफ़ अब तो आप ले इसको लें, मुझे प्लीज बोलने अगर तो दे। बंद कर दें तो मेरे ख्याल में ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा। क्या ख्याल है? खान साहब नहीं आप फरमाएं, भाईजान, आप क्या कह रहे हैं? साथ साथ बोले आप। मैंने कहा कि आप जो ब्राड का असल मकसद था वो तो पूरा हो गया, तो अब आप इसको क्रैश कर दें प्लीज, क्योंकि इसका क्यों भाईजान? देखें जी, भाईजान मेरी किस बात बात सुने, करवा एक रहे हैं सेकंड, अपराध आप? एक मिनट। कश्मीर साहब जलती पे तेल नहीं डालते प्यारे तो भाई। यार जलती पे नहीं ना, मुझे पता ना जो ये करते हैं उम्मे के साथ, मैं जानता हूँ भाई। मुझे यार एक चीज मुसलमान पता है। खातून है, उनको नहीं, सही कर रही है वो। कश्मीर साहब मेरी बोले पहले तो बात मुझे सुने, जानते एक हैं। सेकंड, एक मिनट। कश्मीर भाई एक मिनट जरा म्यूट लगाइए। साथ साथ मुझे एक बात बताइए, अब मुझे तो मैंने बोल यहाँ रहे पर थे, कभी मेरे मामूर तो रशीद का दो जिक्र घंटे किया? बोल रही है, नहीं मुझे नहीं बोल रहे हैं। उम्मे एक बहन मिनट, आप एक मिनट मेरी बात सुने, साथ साथ मेरी बात सुने। आपका इस्लाम ही नैरेटिव रहा है, उसी के पहले ऊपर मेरी आप बात जानी सुन लेना, पहचानी साथ साथ मेरी शख्सियत बात है। सुन ले। मैंने कभी सफदर टेंटो वाले का जिक्र किया? मैंने शौकी चंगर का जिक्र किया? नहीं, मैंने कभी मंशा जट का जिक्र किया? मैंने कभी मामूर रशीद का जिक्र किया? मैंने कभी जबूरत का जिक्र किया? मैंने कभी गुड्डू फिल्मी की हीरोइन का जिक्र किया? मैंने कभी मुख्तारी बेगम का जिक्र किया? मैंने इस तारीख को बिठाकर अपने बच्चों को समेट कर अपनी जिंदगी को एक, जिसे अपने बच्चों को नेक नामी की तरफ, उनको एक तालीम की तरफ, उनको एजुकेशन की तरफ, मैंने इनसे दूर हो गई। लेकिन इन लोगों ने हर जगह पर ये इतना कंजर माफिया, मैं जहां गई इन्होंने मुझे बदनाम किया। बात भी तो सुन लेना। मैं जिस जगह पर गई इन्होंने मेरे पर गंद उछाला। आज मैं इनकी असलियत बता रही हूँ, सिद्धू जट आज साहब मैं जिन इनकी लोगों ने असलियत भी बता रही हूँ, मुझे क्यों रोका जा रहा है? सिद्धू जट साहब जिन लोगों ने भी इनको इस लेवल पे ट्रिगर किया और है, साथ साथ अब ये भी अपनी चीहो पुकार करने पे आ गई हैं। यार सिद्धू जट साहब मैं साथ आपको साथ इल्जाम मेरी नहीं दे रहा, बात सुन ले, लेकिन ये तो जुल्म है ना। मेरी भी तो सुन लेना, मेरी भी एक इस बात लेवल सुन पे तो बात आनी नहीं चाहिए थी यार। म्यूट कर रहे हैं, खुदा की कसम इनका मॉडरेटर मुझे म्यूट कर रहा है। मेरी एक मिनट तो मुझे बोलने दे। इनकी सुन ले उम्मे बहन। जी इनको बोलने दे, बात करने दे, इनको क्या कहना चाहते हैं बोले। जी मैं आपको ये कह रहा हूँ, देखिए ये जी मामून रशीद जो हीरा मुझे मंडी का, बोलने देना, उनका मेरा ये मकसद है, आइडियल मैं है ये बंदे का, और इसकी आइडियल की भांजी की तस्वीरें मैंने लगाई थी। जी सिद्धू साहब बोले। जी सबसे पहले तो आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये मैंने इसलिए पढ़ा कि अगर मेरे दिमाग में, दिल में ये ख्याल में कहीं पे शैतानी आई हो या तो वो भी भाग जाए। कल आपसे मेरी बात हो रही थी, आपने मुझसे पूछा कि तुम मर्द की मुझे वो बताओ ना, मर्द कैसा होता है, मर्द कैसा होता है। मैंने आपके सामने दो मिसालें पेश की, ठीक है। एक मर्द के सब्र की, एक मर्द की जो है ना बर्दाश्त करने की हिम्मत की। एक मैंने मिसाल आपके सामने पेश की एक ऐसे मर्द की जो मेरा टीचर था, ठीक है, हिस्ट्री का। अब गलती से उसका नाम मामून रशीद निकला है। बस कर चल, तो लेना बोल, बस कर, गलती से उसका नाम मुझे कहते हैं। वो 4 बच्चों के साथ वो औरत, उस औरत ने उसके साथ इतना जुल्म किया। मॉडल टाउन में मेरे साथ रिहायशी था। बकवास करते हैं, तू आके ड्रामे करते हैं यहाँ पर। तेरा टीचर था वो।
देखें साद साहब यहाँ कह रहे हैं बार बार, देखें साद साहब आपको मुझे पता है ये बिल्कुल करैक्टर असैसिनेशन की गई है और बड़ी यार मुझे डीप पता है, मेरे कोई ठीक है वाकफ नहीं है यहाँ पे मेरे प्यारे हाँ भाई, मेरा कोई एजेंडा हाँ नहीं है, मैं तो टिकटॉक पे नया हूँ। देखिए जी मेरी बात मेरी सुने किसी एक सेकंड, उम्मे बहन के मैंने साथ मैंने अपना इस्लाम निकाहनामा लगाया की था स्पेसिस ब्राड के जिस ऊपर टाइम वक्त गुजारा इन्होंने, है। एक सेकंड साथ साथ अब मेरी मुझे बात मेरी सुनिए, बात को एक कंप्लीट करने मिनट, दें, बार बार ड्रॉ मेरे इधर उतारो इसको नीचे, उतारो इसको नीचे बात गलत आदमी को। साथ साथ मेरी बात सुने, जी जी मेरे साथ इन्होंने क्या किया कि ये कहा कि इसका बाप जो है उसका नाम है मुद्दा टुंड, ठीक है, और ये बहनें हैं, इसकी बहनें चकला चलाती हैं, इसकी बहनें जो हैं वो ये करती हैं, इसका बाप का नाम है मुद्दा टुंड, और ये शौकी चंगड़ के साथ जो है ये वहां पर डांस किया करती थी हीरा वो दुबई में। ठीक हो गया जी। अब ये बात जो है मेरे तक पहुंच गई, जब मेरे तक पहुंची तब मुझे इन्होंने मैसेजेस में लिखना मुद्दा टूंड फलाना, पहले तो मुझे पता नहीं था कि ये क्या चक्कर है। अच्छा, उसके बाद जब ये बात चली तो ये जो यूसफी नाम का आदमी है इसने कहा कि मेरा भाई एसएसपी है, ठीक है। मैंने अपने भाई को उमेर बाप की तस्वीरें दी तो उसने कहा कि ये सफदर टेंटो वाले की खेल है और ये डांसर होती थी दुबई में, इसकी बहनें जो हैं ये मतलब चकला चलाती हैं और ये इस तरह की औरत है, और ये मेरे भाई उसने बताया है, और ये इसकी असलियत है उमेर बाप की। अब जब ये मेरे तक बात पहुंची तो मैंने अपने वालिद मोहतरम की तस्वीर लगाई, ठीक हो क्या। मैंने कहा, मैंने अपना निकाह नामा लगाया, मैंने कहा जी मेरा निकाह हुआ मामून रशीद से, पहले निकाह की मैंने लगाई मामून रशीद, वहां पर गवाह कौन है, नियाज अली और जो मेरे बाप का नाम है। मैंने अपने बाप की तस्वीरें लगाई, मैंने कहा जी अब मुद्दा टूंड लेकर आओ, वो कौन है और मुझे साबित करे कि मैं उसकी बेटी हूं, या जिसने कहा है वो, जिससे इल्जाम लगाया है वो आए जी। ये जी मेरे वालिद मोहतरम, ये साहब ने मैंने इनकी तस्वीर लगाई। ये तस्वीर जरा बड़ी कर दें मॉडरेटर। वो आप ही करेंगे ही ना जी। अच्छा ये सब झूठ बोल रही है, सब झूठ, मुझे बात ही नहीं अच्छा करने दी जी, जा रही। मेरे वालिद साहब ये है, मैंने जब ये सारी बात बताई अब ये कहने लगे कि उमेर बाप के तो बच्चे जो है ये कादियानी के तो फलाने, तो मामून रशीद, तो मामून रशीद कौन है, मामून रशीद, मैं कोई जवाब नहीं दिया, मैं खामोश थी, ठीक है। अब ये मुख्तलिफ ब्रॉडों पर आते, मामून रशीद अदरीस है तो फिर मामून रशीद, मैंने कोई जवाब नहीं दिया, मैं खामोश थी। कल अब सुन ले, इन्होंने जो ये कर सकते थे, गंद कर सकते थे, इन्होंने किया जितना गंद कर सकते थे। कल ये मैंने हुमैरा की तस्वीर लगाई और मैंने कहा कि हम लोगों को ये नहीं पता होता कि किसी के क्या हालात हैं या क्या नहीं है, लेकिन हम फटाफट करैक्टर असैसिनेशन करते हैं। हम एकदम किसी को कह देते हैं कि ये इसका ये गंदा करैक्टर है, ये लूज करैक्टर है, ये फलानी है, टपकानी है। ये बड़ी सख्त इसकी सजा, इन चीज़ों से बचे। जी जी बिल्कुल। अब वहाँ पर आया जी सिद्धू जट। सिद्धू जट आके कहने लगा कि जी मॉडल टाउन में लाहौर में मेरा एक दोस्त मामून रशीद, मैंने कहा जी मामून रशीद कौन है, वो जी मेरा दोस्त है, मेरा आइडियल है वो। मैंने कहा अच्छा। उस औरत ने उसके साथ शादी की, उसके बच्चों को उसके साथ मिलने नहीं दिया, उसने सारी जिंदगी सब्र का वो पैमाना उस बंदे का मैंने देखा। मैंने कहा जी आपका क्या है, मेरा वो जिगर है, मेरा वो यार है, मेरा वो फलाना है। मैंने कहा जी ठीक हो गया। अब फिर मैंने बताया कि मामून रशीद जो तुम्हारा दोस्त है ना, जो तुम्हारा यार है, उसकी ये तुम्हारी भांजी है, बुझा दो, जिसका सफदर टेंटो वाले का नाम लेते, ये सारा एक ग्रुप है। सही। और जिस वक्त ये हम 4 बहनें थी, ये हम लोगों के पीछे ये कुत्तों की तरह मरते थे, कुत्तों की तरह। लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है, मेरी भांजियां, मेरी बहनें, मेरा घर, इनकी तरफ थूका नहीं है कभी हम लोगों ने, ठीक है। और मैंने अपने बच्चों को तालीम दिलाई। अब इनकी भांजियां जो हैं वो कौन है भांजी, ये जी मिस्री ड्रामे की एक्टर जो मैंने अभी लगाई थी, ये अभी जो मैंने एक्ट्रेस की नंगी तस्वीरें लगाई थी, ये इसकी भांजी है। मुजाहिदीन खत्म नबूवत, ये आबर नज़ीर,
ज़िया अमीनी, मुफ्ती मुबशर, ये जो अपना सिद्धू जट, यूसुफी। मीर, ये इनकी भांजी। अब मेरे ऊपर, मैंने तो ये भी नहीं देखा कि ये शख्स मुझे कमा कर दे, मुझे साबित कर दे कोई आकर कि हीरा मंडी की कमाई में से उमर रुबाब ने कभी 1 रुपया लिया हो किसी से। उमर रुबाब में इतनी गैरत है, उमर रुबाब इस बाप की बेटी है। लाओ अपने बाप की तस्वीरें और मेरे बाप के साथ उसको खड़ा करके देखो कि मेरा बाप क्या, और तुम्हारे कुत्तों, तुम्हारे बापों को तो कोई रेड़ी लगाने की जगह नहीं देता। ये तुम्हारी औकात है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है जी। ये इज्जतें उछालने वाले, ये खुद को देखें। ये जी, ये मेरा बाप है, ये मेरे बाप की तस्वीरें हैं। लगाओ, लाओ अपने बाप की तस्वीरें, मैं देखो किसकी औलादे हो तुम। यहाँ पर लगाओ उसकी तस्वीरें, मामून रशीद के बाप की, फजल की, ठीक है, फजल दीन की, हीरा मंडी का पटवारी खानदान का लगाओ यहाँ पर। लाओ, लाओ अपने बाप। तुम लोगों को गैरत नहीं आती, तुम लोगों को हया नहीं आता, तुम लोग बगैरतों के बगैरत लोग हो। अस्सलाम वालेकुम। खत्म नबूवत का तुम नाम लेकर बदनाम करते हो, खत्म नबूवत को, बगैरतों जी। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी मेरे भाई। नहीं, मैं चुप हो गया, मैंने कहा कोई लड़ाई चल रही है। लड़ाई नहीं चल रही मेरे भाई, नहीं चल रही, हकीकत बयान हो रही है। 25 साल से एक औरत ने अपनी जिंदगी इज्जत के साथ, अपने बच्चों की खुद कफील होकर उसे परवरिश की। सदर टेंटो वाला, ये कंजर ग्रुप, इन्होंने धोखाधड़ी के साथ, मेरी जो पहली शादी हुई थी वो मामून रशीद के साथ हुई थी। जब मुझे पता चला कि ये लोग तो बहुत गलत हैं और बड़े ही गंदे लोग हैं, और मैंने अपने बच्चों को लिया और मैं अलहदा हो गई। मैंने सब अपना अदरीस जो सितारा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री का मालिक है उसके साथ शादी की और मैं अपनी ज़िंदगी गुजारने लगी। इन लोगों ने 25 साल से कोई जगह नहीं छोड़ी। अगर मैं किसी कॉलेज में पढ़ा रही हूँ ये वहाँ पर आए, अगर मैं किसी नेबर में रह रही हूँ ये वहाँ पर बदनाम करने के लिए आए, अगर मैं लाइव पर आई हूँ ये कोई जगह इन लोगों ने नहीं छोड़ी। आज वो टाइम है कि मैं इनके बारे में बता रही हूँ कि इनकी हकीकत क्या है, जो आज तक जिसने कभी जुबान नहीं उठाई थी। ये नहीं था कि मुझे डर था इनका, मुझे कोई डर नहीं है इनका, मैं जूती के बराबर नहीं इनको जानती, लेकिन डर अल्लाह ताला का था कि जो कोई है वो अपनी ज़िंदगी गुजारे, मुझे क्या ज़रूरत है, मैं क्यों बात करूँ किसी के बारे में। मैंने जब छोड़ दिया तो छोड़ दिया, बात खत्म। कश्मीर साहब अब आप बात कर। जी जी, देखें उम्में, ये लोग जिस तरह से, मैं बिल्कुल समझ गया हूँ कि इन लोगों ने मतलब ये आपको तंग करने की, झुकाने की कोशिश है असल में, कि जी ये हम इसको इस तरह से ये करें वो करें, इल्ज़ाम तराशी करें, तो ये बिलाखिर जो है ना, जैसे बाकी औरतें बेचारी जिनके साथ इन्होंने ज़्यादतियाँ की हैं, टिकटॉक के ऊपर भी ब्लैकमेलिंग की है, तो इनका ये नियत है कि जी उम्में भी ऐसे ही करेगी और हमसे माफी तलाफी कर लेगी। कश्मीर भाई आप मुझे जानते हैं ना, मेरी बात तो सुन ले यार, आप क्यों मेरी बात सुनो, यहाँ पर तुम्हारी किसी ने बात नहीं सुनी, भाग जाओ यहाँ से, अपनी ब्रॉड लगाओ जाके, चलो बात सुनाओ जो बात सुनानी है। जी कश्मीर आप बात करें। तो ये मिसाल के तौर पे उम्मे को असल में ये सिस्टम चल रहा है कि ये लोग कह रहे हैं यार ये ब्राड लगाती है, ये कुरान की बात करती है, क्यों करती है? हम हैं ठेकेदार, हम लोग हैं, हम किसी को मुसलमान बनाएंगे, हम किसी को काफिर करेंगे। उम्मे यहाँ पर दीन की, कुरान की बात करती है, क्यों करती है? इसकी करैक्टर असैसिनेशन करें, इल्ज़ामात लगाकर, झूठे इल्ज़ामात जिनकी कोई बैकग्राउंड नहीं। अब अगर आप लोग गौर करें ना, तो जिस तरह से उम्मे को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश ये लोग कर रहे हैं, उनकी फैमिली को, ये बड़ी शर्मनाक है। और ये कम अज़ कम तो कोई इंसान भी नहीं करता, फिर खुद को मुसलमान कहना, फिर खुद को ख़त्म नबूवत के लीडर कहना, तो ये शर्मनाक बात है। इन लोगों को मर जाना चाहिए, डूब के मर जाना चाहिए कि तुम लोग कर क्या रहे हो। एक औरत के मुकाबले में इस तरह के झूठ, उसकी करैक्टर असैसिनेशन, इस चीज़ की इजाज़त कौन देता है तुम लोगों को? तो उनमें बेफिक्र हैं, आप जिस तरह से मजबूत हैं सब जानते हैं। आप इंशाअल्लाह ताला नहीं झुकी और झुकेंगी भी नहीं इन लोगों की ब्लैकमेलियों के सामने। और आप बिल्कुल ठीक कर रही हैं, इनकी हकीकत बता रही लोगों को कि ये लोग कौन है। बिल्कुल जी जी साहब भाई आप कुछ कर।
जी कश्मीर साहब आपने जी जी देखें बुनियादी बातें कश्मीर साहब ठीक है, किसी को भी तंग नहीं करना चाहिए, ख़ास तौर पे ख़वातीन को ऐसे एहतराम करना चाहिए, सबको अपनी माएँ बहनों की तरह इज़्ज़त एहतराम से डील करना चाहिए। ये तो बुनियादी असूल हैं इंसानियत के भी और दीन इस्लाम के भी, ठीक है, इसमें कोई दो राय है नहीं। अब नौबत आ गई है इस लेवल पे कि उम्मे बहन ने इस्टेब्लिश किया है कि इनको लोगों ने हरास किया है, यहाँ पे तंग किया है नाजायज़, और वो इस लेवल पे ट्रिगर हुई हैं कि उन्होंने यहाँ पे आके मतलब ये जो एक्सपोजर है। अब उम्मे बहन देखें, मेरे ख्याल में द थिंग्स हैव गॉन टू फार। अब आपका जो साइड का नैरेटिव है मेरे ख्याल में वो फुलफ़िल हो गया। अब आप अगर ऐसे करें कि इस ब्राड को क्रैश करके उनको मैसेज पहुंच गया है, उन्हें भी चाहिए कि वो भी सीज़ फायर करें और उम्मे बहन को उनके हाल पे छोड़ें और उनको ज़िंदा रहने दें, उनके बाल बच्चे समेत। किसी को भी हरास करना, तंग करना, यार ना ये इंसानियत है, ना इस्लाम इसकी इजाज़त देता है। खुदा के लिए एक सेकंड प्लीज़, मेरी आपसे हाथ बांध के यार गुजारिश है, जो भी लोग इनके ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, मुसलमान है, गैर मुसलमान है, आई डोंट केयर कि आपका मज़हब क्या है, गैर इंसानी फ़ेल है, आप इनको ना छेड़ें, ये आपको ना ऐसे रिटेलिएट करें इस तरह से। तो ये सीज़ फायर हो जाए यार, आप अपना काम लें, वो अपना काम करें। वाई वी आर रियली आफ्टर ईच अदर, हमें क्या। और फिर इसमें देखें ना कि अगर आप कुछ लोग अगर इस्लाम का भी काम कर रहे हैं तो उसमें इस्लाम का भी ख़त्म नबूवत का भी रेफरेंस आ रहा है, उससे वो काम जो है उसकी उसमें बैड नेमिंग हो रही है। डैमेज तो कोई किसी का काम नहीं कर सकता, अल्लाह का काम जो है वो तो अल्लाह ही जाने, लेकिन यह है कि उसके ऊपर बैड नेमिंग जो है ना, लेबलिंग होती है, और लोग हमारे जो मुखालफिन हैं वो हंस रहे हैं और वो ठट्ठा कर रहे हैं ऑब्वियसली। तो हम क्यों ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें किसी साइड को भी। तो मेरी आपसे उम्मे बहन, देखें मेरा आपका ताल्लुक सिर्फ इतना है कि मैंने आपको ब्रॉड्स के ऊपर डिस्कवर किया है इस्लाम के नाते से। मैं आपका सिर्फ एक ही तारफ जानता हूँ कि आप इस्लाम की आलमा हैं, बहुत गहरा नॉलेज रखती हैं कुरान और हदीस का, और इन मसाइल को आप बयान करती हैं, और अल्लाह के दीन की आप सरबुलंदी के लिए जितना मैंने आपको इंटरेक्शन आपसे मेरा हुआ है इन्हीं मौज़ूआत पे हुआ है। तो मेरी रिस्पेक्ट और आपसे तल्लुक़ की महज यही वजह है, तो आई रिस्पेक्ट यू फॉर दैट। दूसरे जो लोग काम कर रहे हैं उनके साथ भी यहाँ पे तारुफ हुई है कि दीन इस्लाम के तल्लुक़ से, तो सबकी मैं तो इज़्ज़त रिस्पेक्ट जो है वो दीन इस्लाम के मयार के ऊपर करता हूँ। तो अगर वो है तो उसके लिए हमें यही है कि इंसाफ होना चाहिए, जुल्म किसी भी जान के ऊपर ना करें। तो मेरी प्लीज़ अगेन दस्तबदस्ता आपसे सबसे दरख्वास्त है कि प्लीज़ जो हुआ है आज के दिन तक छोड़ें। इसमें से जो निकल रहा है वो आप सबके सामने है कि इसमें बद से बदतरीन जो है ना इसके एलिमेंट्स जो है वो बरामद हो रहे हैं। तो इसमें और क्या निकलेगा, और किसी की जान जाएगी, किसी के आई मीन सोशल मीडिया से कितने नुकसानात हुए, आप जाके सर्च करके देख लें। फेसबुक से और मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से मेरा बड़ा वास्ट एक्सपोजर है इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। बहुत सारे इवेंट्स होते हैं जो लोगों के लिए जानी और माली नुकसान का बायस बनते हैं। तो क्यों भाई आप लोग रुकेंगे कि जब नौबत वहाँ तक पहुँचे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी भी इंसान को तकलीफ़ देना। मैं तो कहता हूँ कोई गैर मुस्लिम भी हो तो उसको भी जान से तकलीफ़ देना, उसके माल की तकलीफ़ देना, ये गैर इंसानी फेल है। प्लीज़ इसको बंद किया जाए, मेरी आपसे अपील है। साथ भाई मेरी बात सुने, मेरे पे तो लगाई गई, कश्मीर साहब एक मिनट, कश्मीर भाई एक मेरे पे तहमतें लगाई गई, ठीक है, मेरे पे इल्ज़ाम तराशियां, मुझे आप हकीकत बताने से मना कर रही हैं। कश्मीर भाई आपको बात समझ आ रही है? जी मैं देखें मैं यही अर्ज करना चाहता हूँ। देखें इन्होंने बातें तो अच्छी की, कह रहे हैं सीज़ फायर। भाईजान सीज़ फायर होता है बराबरी की बुनियाद पर। जिन लोगों ने ये गंदी हरकतें शुरू की हैं ना वो आए, और ये आज की नहीं है, 2 साल से ज़्यादा तो मुझे हो गया ये देखते हुए। और ये जिन्होंने ये गंदी हरकतें इल्ज़ामात के सिलसिले शुरू किए हैं, इधर आएँ, आके माफ़ी मांगे, लोगों को कहें कि जी हमने प्रोपेगेंडा किया है, तो फिर सीज़ फायर हो जाएगा। कोई ऐसी बात नहीं। सीज़ फायर का नाम ये नहीं होता कि एक बंदा अटैक करे और दूसरा जो है वो मार खाते हुए कहे जी अच्छा जी मैं कर रहा हूँ। भाईजान वो बिल्कुल ठीक कर रही हैं, आपको नहीं पता ये लोग माल बटोरते हैं ख़त्म नबूवत का नाम लेकर। ये लोग ब्लैक मेलिंग औरतों के साथ करते हैं, आपको नहीं पता इन लोगों का।
हमें इन लोगों का पता है, ये जो जो हरकतें कर रहे हैं ना, और नाम ले रहे हैं इस्लाम का, और दीन इस्लाम ने क्या मना किया है? अल्लाह ताला तो कहता है हक को हक करो और बातिल को बातिल करो, और इन लोगों को ओपन करना ये बिल्कुल ये जायज़ काम है और बेहतरीन काम है, मैं समझता हूँ। और सीज फायर भाईजान ऐसे नहीं होता। आप बार बार कह रहे हैं आप शरीफ इंसान लगते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इनकी हरकतें जो है वो बहुत बड़ी हैं, जो इन्होंने हरकतें की हुई हैं। जी कश्मीर साहब, मायार जो है ना वो तो अल्लाह और रसूल के मुतय्यन किए हुए जो असूल है ना, हमें चलना तो एट द एंड ऑफ द डे उन्हीं के मुताबिक है ना। देखिए तो साद भाई मेरी बात सुने, जी एक शख्स जो है वो ये कहता है कि एक औरत ने इस बंदे के बच्चे ले लिए, इसके साथ बड़ा जुल्म किया, वो औरत बड़ी ख़राब थी, वो औरत बड़ी गंदी थी, यानी वो मेरे बारे में बात जो कर रहा था। अब मुझे वो हकीकत बतानी है या नहीं बतानी, मुझे ये बताई। नहीं वो बात मैंने तो उसकी रियलिटी बताई है कि हमारे साथ ये धोखा हुआ, ये बंदा फलां जगह से था, इनकी बहनों का ये गंद था, ये हम लोग नहीं बर्दाश्त कर सकते थे। हमें बाद में पता चला मेरा माँ बाप एक शरीफ आदमी था, मैंने अपनी तालीम को जारी रखा, मैंने अपनी जो आमदन का ज़रिया था उसको रखा, मुझे एक अच्छा इंसान मिल गया जिससे मैंने शादी कर ली, और मैंने पलट के नहीं देखा। और ये 25 साल से यही काम कर रहे हैं, हर जगह पे कर रहे हैं। अब जब ये ख़त्म नबूवत ने तो खुद अपने आप को वाज़े किया, इन्होंने तो अपना ग्रुप खुद शो किया कि ये फलां ग्रुप की है, मैंने तो नहीं किया किसी को साथ भाई। एक कंजर ग्रुप है। लेकिन देखें ख़त्म नबूवत का कश्मीर साहब एक काम, सेकंड ठहर, कश्मीर साहब देखें सैयद ज़फ़रुल्लाह शाह साहब काम कश्मीर साहब करते हैं, हम मेरी उनके जान, पीछे कश्मीर खड़े साहब हैं, प्लीज एक सेकंड लेकिन वो सही काम कर रहे हैं। ये लोग तो कश्मीर साहब होल्ड जी जी कीजिएगा। अब ये जो ब्राड है इसकी रिकॉर्डिंग लोगों ने कर ली होगी, अब इसके क्लिप चलते रहेंगे, ये अब वायरल समझ ले हो गई। अब आपका जो इनको एक्सपोज करने का था वो एस्पेक्ट वो तो फुलफिल हो गया। अब अगर फर्दर इसकी तो ज़रूरत मेरे ख्याल में उम्मे बैन नहीं है। अब आप प्लीज़ क्रैश करके देखिए जी मेरी बात सुनो, बार बार मेरे पे बरात कराने इन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि मैंने मामून रशीद को बच्चे नहीं मिलने दिए, मैंने उसके साथ बड़ा जुल्म किया, मैंने उसके साथ इस तरह किया। मैंने आपको बड़ा वाज़े तौर पर बताया कि मेरी जो पहली शादी थी वो एक रिश्ते करवाने वाली ने करवाई, वो मॉडल टाउन की रिहायशी थी, उससे हमें नहीं बताया। मामून रशीद का कोयत में होता था अपनी बहन के साथ, और इन्होंने कहा कि वो इंजीनियर है, और वो बहुत मतलब इस तरह इन्होंने तस्वीरें भी हम लोगों को गलत दिखाई। एक महीना जो है वो मंगनी भी नहीं की, और जी शादी कर दी गया, लड़का आ गया, फलाना हो गया। वो तो फ्रॉड वाज़े हो गया, मतलब वो तो फ्रॉड वाज़े हो गया, क्योंकि अंदर आपके मिजाज में या आपकी तालीम, आपका सारा जो गेटअप है वो तो मैच ही नहीं ना करता जो आप इस जी। शादी तो वो अब तो जब मेरा वो फ्रॉड तो लोग मैच नहीं किया, मैं अलग हो गई। जब मैं अलग हुई मेरे ऊपर ये इल्ज़ाम, और मैंने ये बताया कि मैंने उसको क्यों छोड़ा, क्योंकि उसकी बैकग्राउंड ये थी, अगर वो खुद एक अच्छा इंसान होता, वो बेतहाशा शराबी था, वो नशेई था, ठीक है, वो नशे करता, वो मतलब वो मुझे जब मेरी मतलब शादी वाले दिन उसका शकील नाम का एक दोस्त था, वो आया तो इन्होंने मतलब ड्रिंक की, तो इसने मतलब मेरे सामने पी इन्होंने ड्रिंक। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह ठीक ताला है, हर किसी को और इस मैं मतलब इतनी परेशान, और मैं एक बड़े शरीफ घराने से थी, मेरे वालिद एक बड़े ही नेक और बड़े मुअज़्ज़ज़ मतलब शख्स थे, मेरे लिए ये चीज़ें बर्दाश्त से बाहर थी, जो मैं नहीं रही। मैंने कहा नहीं जी मुझे ज़रूरत नहीं है। अब मुझे मामून रशीद 1 रुपया साबित कर दे कि उसने ज़िंदगी में मुझे दिया हो या मैंने उससे लिया हो, नो। मैं ऐसी हराम कमाई के ऊपर करोड़ दफ़ा लानत भेजती हूँ। मुझे अल्लाह ताला ने स्किल्स दी है, मुझे अल्लाह ताला ने इतनी हिम्मत दी है, मुझे ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैं अपने बच्चे, औरतें अपने बच्चे दे देती है कि ठीक है, लेकिन मैं अपनी बेटियों की को नेक इंसान बनाना चाहती थी, मैं उनको बेहतरीन शहरी बनाना चाहती थी, मैंने नहीं किया। मैंने तो अल्लाह ताला की रज़ा के लिए नहीं किया, मैंने अपने लिए मुशक्क़त बर्दाश्त की है, उसको तो मैंने कुछ नहीं कहा। और ये उठ के मुझ पे इल्ज़ाम लगाए, ये कौन होते हैं? ये कहते हैं कि हमारा मामून रशीद हमारा आइडियल है, ये तुम्हारी भांजी है, खत्म नबूवत की भांजी की भी मैंने तस्वीर लगाई हुई थी। नहीं वो खत्म नबूवत का नाम तो ना ले। अब ये लोग अगर ये काम कर रहे हैं तो वो खत्म नबूवत का लेबल देखे, अब वो जितना बड़ा खत्म नबूवत का मुजाहिद है, सिद्धू तो मैं यही कहूंगी ना कि नाम निहाद खत्म नबूवत का मुजाहिद है, उसकी भांजी है, यही कहूंगी, और क्या कहूँ मैं?
ظاہر ہے وہ سارے نام نیادی ہوتے ہیں، لیکن وہ لیبل آپ اس نہ رپیٹ کریں، کیونکہ ختم نبوت تو ایک کام ہوا نا، وہ تو ان لوگوں کے ساتھ تو اس کا کوئی ریلیشن۔ دیکھیں میری بات سنیں، بات یہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ پہلے تم لوگ اپنا مثال کے طور پہ کہ میں کشمیر کے اوپر الزام لگانے لگوں نا، تو کم از کم مجھے اس کی پرسنالٹی کو جانچ ضرور لینا چاہیے کہ یہ الزام جو ہے یہ جج بھی سکتا ہے کہ نہیں جج سکتا۔ مثال کے طور پر کہ میں کشمیر کے بارے میں کہتی ہوں کہ یہ اچھا آدمی نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ بڑی گندی شکل کا ہے، یہ فلانا ہے، یہ ڈھمکانا ہے، یہ اس طرح کا ہے۔ اب یہ ایک ہینڈسم آدمی ہے، یہ کیمرہ آن کر کے کہتا ہے کہ یہ دیکھو جی میں تو جھوٹی ثابت ہو گئی نا، میں تو جھوٹی ثابت ہو گئی کہ اس نے کیمرہ آن کر دیا۔ میں تو کہتی تھی اس کی شکل اچھی نہیں ہے، وہ ایسا ہے، وہ تو بڑے چھوٹے قد کا ہے، وہ بڑا موٹا ہے، وہ کالا ہے۔ وہ جب آتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں تو ایک ہینڈسم آدمی ہے۔ یہ جھوٹ ہے جی عمر باپ کا، یہ بکواس کر رہی تھی۔ میں نے یہ کیا کہ میں نے مامون رشید کے بارے میں بات نہیں کی، میں نے ٹونی کے بارے میں بات نہیں کی، میں نے صفدر ٹینٹو والے کی بات نہیں کی کہ وہ سمگل رہ رہا ہے، وہ کیا کرتا ہے، اس نے کیا کیا ہے، مجھے ضرورت نہیں تھی۔ ان لوگوں جن کے گروپ کے تھے جو مجھے ٹیز کر رہے تھے، جو 25 سال سے خاموش تھی، انہوں نے بلوایا مجھے، انہوں نے کہا کہ ہماری اوقات بتاؤ ہمیں۔ سدھو جٹ، میں تمہیں بار بار ایک بات کہہ رہی ہوں کہ میں تمہیں اجازت نہیں دیتی یہاں پر بات کرنے کی۔ میں نے کل جو تمہاری بات سننی تھی تمہیں کل ہی جواب دے دیا تھا، اور آج بھی میں نے جواب دے دیا۔ اپنی براڈ لگاؤ، جو مرضی وہاں پر جا کر بات کرو۔ اچھا 1 منٹ تو دے دینا مجھے، 1 منٹ بولنے تو دے۔ سدھو جٹ صاحب میرا آپ سے ایک سوال ہے۔ جی سر پوچھیں۔ یار مجھے آپ صرف اتنا یہ بتا دیں کہ اس خاتون بیچاری کو یار اتنا کن لوگوں نے ٹریگر کر کے یہاں پہ پہنچا دیا ہے کہ وائی دیر از ریئلی نیڈ فار ہر۔ ساتھ بھائی آپ کیوں یہ بات کریں؟ مجھے پتہ ہے یہ لوگ کون ہیں، آپ یہ نہ کریں۔ اچھا آپ مجھے بولنے تو دینا، انہوں نے میرے سے سوال کیا، مجھے جواب دینے دینا۔ جی یہاں پر آپ ساتھ بھائی ان کی براڈ پہ جا کے ان سے سوال کیجیے گا، یاد رکھیے۔ اوکے اوکے اوکے، آپ ان کی براڈ پہ جائیے گا، وہاں پر جا کے آپ میرے ساتھ زیادتی کر رہی ہیں، میرے ساتھ جو ہے نا آپ غلط کر رہی ہیں۔ میں نے کہا کہ آپ کی براڈ کے اوپر جائے، جا کے جو مرضی آپ سے سوال کرے، یہاں پر نہ کرے۔ نہیں مجھے بات تو کرنے دینا، 1 منٹ تو دینا آپ۔ مجھے اسپیشل میں آپ کی براڈ سن رہا تھا، میں نے سارے کام دیکھیے جی کشمیر صاحب مجھے بتائیں، ایک دن انہوں نے 6 ٹائم مجھے براڈ شیئر کی، میں ان کی براڈ پر گئی، وہاں پر ابابیل، وہاں پر کچھ اور لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے، اور انہوں نے وہاں پر کہا کہ رباب صاحبہ آپ چلی جائیں یہاں سے، ہم نے آپ کو نہیں لینا، ہمارا آپ کا بائیکاٹ ہے اور ہم آپ کو نہیں لے سکتے، آپ یہاں سے چلی جائیں۔ میں نے کہا جی میں تو آئی نہیں ہوں، مجھے تو آپ لوگوں نے بلوایا تھا، 6 دفعہ تو میں آئی ہوں، مجھے ضرورت نہیں آنے کی، میں نہیں آ رہی، سوری۔ اب یہاں پر آ کے یہ کہتے ہیں جی ہماری ایک، میں نے تو کل بھی ان کی بات سنی، ٹھیک ہے، یہ تو میری انسانیت ہے۔ اب جا کے اپنے گھر جا کے براڈ لگائی۔ اچھا یہ جو الزام لگا رہی ہے نا کہ آپ چلے جائیں، ہمارا ان سے بائیکاٹ ہے، میں اس بات پہ قسم اٹھا دیتا ہوں کہ میں نے ان کو ایسا کچھ نہیں کہا۔ میر نے کہا، تو وہاں پر موجود تھے، وہاں پر ابابیل موجود تھا، وہاں پر اور لوگ بھی تھے۔ تو وہ براڈ کس کی تھی؟ میر کی تھی نا، تو میر نے کہا نا، تو میں میر کا جواب دے تھوڑی ہوں، وہ اپنی براڈ پہ جو مرضی کرے، میں کیا کروں وہاں پہ، مجھے بتائیں۔ میری بات سنیں، تم نے کہا تھا وہاں پر کہ وہ مجھے پتا ہے تمہارا، تم نے کہا تھا کہ میں موڈیٹر نہیں ہوں یا پتہ نہیں کچھ اس طرح کی بات کہی تھی۔ ہاں جی، مجھے میں پتا نے ہے آپ کی فیور میں بات کی تھی نا۔ ہاں کی تھی، مجھے پتا۔ ہاں اب یہ کشمیر صاحب یا سعد رضوی صاحب یا جو بھی یہ گینڈا شرابی یا ٹٹی سپائی جو بھی براڈ لگائیں، میں وہاں پہ بیٹھا ہوں پینل پہ، اور یہ گینڈا شرابی کہہ دے کہ میری بات سنو سدھو، ایک منٹ میری بات سن لو۔ کل جب میں نے اپنا نکاح نامہ لگایا تھا مامون رشید کے نام سے، ٹھیک ہے نا، جو میرا پہلا نکاح ہوا تھا میرے اپنے والد کی ولدیت کے ساتھ، مجھے بڑے لوگوں نے، یہ یوسفی تھا، ابو بکر تھا، میر تھا، انہوں نے نیچے مامون رشید کون، وہ بتاؤ، فلانا کرو، یہ کرو۔ میں بالکل خاموش نہیں، میں نے نہیں بولی، ٹھیک ہے، میں بالکل خاموش نہیں، میں نے اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کی۔ میں نے جب بھی بات کی ہے، حسین آپ کو بھی پتہ ہے، میں نے ہمیشہ ادریس کی بات کی ہے، میں نے مامون رشید کا کبھی نام بھی نہیں دیا۔ ایسے ہی ہے، میں نے نہ کبھی ٹونی کہا، نہ میں نے کبھی مامون رشید کہا، نہ میں نے کبھی ذکر کیا۔ میں نے جب بھی بات کی ہے ادریس کے حوالے سے میں نے بات کی ہے، میں نے باقی کبھی کسی کے بارے میں بات نہیں کی۔ اب جب
इन्होंने ब्रॉडो के ऊपर इस तरह कहना शुरू कर दिया। मैंने तब भी जवाब नहीं दिया। मुझे ये था कि मुझे किसी को नंगा करने में या किसी की पर्दा उतारने में मुझे क्या प्रॉब्लम है। जब मैं अलग हो गई, मैं रही नहीं, मुझे क्या ज़रूरत है किस चीज़ को डिस्कस करने की। मैंने बुकली ब्रॉड्स पे ये बात कही कि मुझे ये सफ़र करते हुए 25 साल गुजर गए। मैं किसी नेबर में गई, मैं ब्रॉड पर आई, मैं किसी कॉलेज में पढ़ाया, मैंने अपना स्कूल बनाया। इन लोगों ने, ये सफदर टेंटो वाले ने, शौकी चंगड़ ने, ये अपना ये जो मामून के रिश्तेदार थे, ये जो कंजर माफिया था सारा, इन्होंने मेरी ज़िंदगी अजीरन करने की कोशिश की। लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे इतने अच्छे अच्छे लोग दिए, इतने अच्छे अच्छे लोग दिए कि आपको मैं बता नहीं सकती। लेकिन मैं यहाँ पर ये बात कहूँगी कि जिसको अल्लाह रखे उसको कोई नहीं मार सकता। बेशक बेशक। ठीक है, ये जितने बड़े बदमाश थे, ये जितने बड़े उचक्के थे, ये जितने बड़े थे, मैं खुद पाकिस्तान में ड्राइव करती थी, मैं पाकिस्तान में अपने बच्चों का पिक एंड ड्रॉप खुद करती थी, मैं खुद कफील थी, मैं खुद मुख्तार थी, कनाडा में भी और पाकिस्तान में भी। अब मुझे भी सुनना कि बोलने देना कि नहीं, आप मुझे बता दें, मैं इतनी देर से आपको सुन रहा हूँ। 2 जी बताइए जी आप। जी शुक्रिया। सबसे पहली तो बात ये है कि मुझे आप ये बताएं कि मैंने आपके बारे में ये जितनी डिटेल आपने बताई है, मैंने कोई बात की ऐसी? जी आपने जो बात की थी, इन्होंने जी ये बात की थी कि मामून सच बताना। मॉडल टाउन का रिहायशी, मेरा करीबी, मेरा आइडियल, उसकी बीवी ने 4 बच्चे लिए और उसको बच्चों को मिलने नहीं दिया। मैं उस बंदे की बड़ी कदर करता हूँ, उसके सब्र को मैं सलाम करता हूँ, मेरा आइडियल आदमी है वो, और वो एक बेहतरीन। मैंने कहा जी आपकी मुलाकात कहाँ हुई? कहता जी मेरी मुलाकात उसकी मॉडल टाउन में, मेरा वो बड़ा करीबी, मेरा वो फलाना, ये सब कुछ इस बंदे ने कहा। जी बोले अब। इससे पीछे वाली भी स्टोरी बताए ना, जब वो आप एक एक्टर की पिक्चर लगा के तो मर्दों को क्रिटिसाइज कर रही थी कि मर्द होते ही बुरे हैं, मर्द ये, मर्द वो, मर्द इस तरह। तो जी मैं अब ये भी बता देती जी, अब सुन लेना, मुझे भी तो बोलने देना। एक सेकंड, एक मिनट है जरा। कश्मीर साहब, मैंने मेरा जो लड़की जो जिसका मर्डर हुआ अब बाद में बोलिएगा, मुझे मॉडरेटर एक मिनट मॉडरेटर तो बना दें। एक मिनट ठहर जाओ। जिस वक्त अपना वो उस लड़की के बारे में मैंने लगाया और उसकी एक पोस्ट लगाई कि वो भूखी थी, तकलीफ में थी, क्या उसके हालात थे, वो कैसी थी, ये तो किसी को नहीं पता कि मरी कैसे, उसको कितनी अजियत थी, उसे कोई कर्जा देना था, वो परेशान थी नहीं थी। लेकिन ये पता है कि इसका करैक्टर अच्छा नहीं था। वहाँ पर एक आदमी आया, मैंने कहा कि ये हमारे माशरे के मर्दों का मतलब है कि एक मर्द जो होता है, रिजालु कव्वामून अल-निसा, वो एक औरत का कायम मुकाम होता है, उसका सपोर्टर होता है। उस आदमी ने कहा कि मैं बड़ा मर्द हूँ। मैंने कहा कैमरा ऑन करो। वो कैमरा को ऑन करके आ गया, कैमरा को ऑन करके आया। जिस वक्त बैठा उसने बात की, बात करके तो मुझे उससे जो अल्फाज बोले उस पर गौर कीजिएगा। मुझे उसने कहा कि जी मैं एक मर्द हूँ, मेहनत करता हूँ, यहाँ पर मेरा बिजनेस है इटली में, और मैं इस तरह। मैंने कहा जी ठीक हो क्या? उसने कहा कि टिकटॉक पे आप लगा ले, या वैसे एक लगा ले कि एक औरत है वो नाच रही है, गा रही है, मतलब डांस कर रही है, उसके पीछे जो आदमी है ना वो बगैरत है जो उसको नचवा रहा है, वो बगैरत है जो अपनी औरत को नचा रहा है, और औरत जो है ना वो गंद कर रही है। ठीक है, तो वो दोनों ही बगैरत है मेरी नजर में। मैंने कहा जी नीचे जो मैसेजेस कर रही है, जो गिफ्टिंग कर रही है, जो मतलब वो करे, वो कौन है? वो तो एक औरत है बगैरत। नीचे जो सैकड़ों के हिसाब से, मिलियंस के हिसाब से गिफ्टिंग हो रही है, वहां पर उनको मैसेजेस जा रही है, वहां पर उसको मौजू भेजे जा रही है, जो उसको देख रहे हैं वो कौन है? वो आदमी कहने लगा कि वो तो मतलब कोई तमाशा लगा होगा तो वो तो देखेंगे। मैंने कहा जी मेरी नजर में यानी कि वो ठीक है, वो ठीक है जो देखने वाली है। अब मैंने कहा एक औरत है वो तो हो गई बुरी, तो वो जो मिलियन उसको देख रहे हैं, जो वो कहते हैं कि वो तो ठीक है, वो तो तमाशा लगा सारी देखेंगे। मैंने कहा अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया कि कुल लिल मुमिनीना युफद्दूना अबसारहुम। बताए ना कि अभी आपने जो एक मिनट कश्मीरी भाई निगाहें नीची कर ले, औरतें देख रहे थे तो क्या ये भी ऐसे हो गए? एक मिनट ठहर जाओ।
मैंने आप कहा मुझे जो तस्वीर लगाई तमाशबीन कश्मीरी भाई ने उसको निकाह नीचे मोटिवेशन की। दे रही है, जो उसको नहीं, पैसा दे रही मेरी है, मेरी और जो दोस्त उसको की है गिफ्ट नहीं मेरी। कर रहे हैं, वो शरीफ है, वो ठीक है। मैंने कहा मेरी नजर में सबसे ज्यादा बगैरत वो है जो उसको इंकरेज कर रही है, जो उसको मोटिवेट कर रही है, जो उसको सपोर्ट कर रही है कि तुम जो कर रही हो ठीक कर। मैंने कहा उतरो नीचे। इतने में कश्मीरी सिद्धू भाई साहब भी आए। आपको इनकरेज कर रहे हैं ना, आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो क्या ये भी फिर बगैरत हो गए? नहीं, मैं देखें आप जो मर्जी जी कहें, मैंने आप क्या पे गलत है। किया जिसके ऊपर मुझे सपोर्ट किया वो बता दो, जरा मेंशन कर दो। नहीं, पहले आप अपनी बात कंप्लीट करें, उसके बाद सिद्धू साहब आए, आगे चलें। हाँ जी, मैंने उस आदमी को उतारा नीचे और सिद्धू साहब तशरीफ लाई। अब इन्होंने अपना आइडियल बताया मामून रशीद, और उसने कहा कि उसके 4 बच्चों को लेकर वो औरत जो है उसको मिलने नहीं दे रही, उसको फलाना नहीं कर दी। अब सिद्धू साहब आप बताइए, करें बात आप। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया आपने मुझे मौका दिया जी। सबसे पहले तो बात ये है कि कल इनसे बात ये हो रही थी कि देखें, दुनिया में सारे मर्द गलत नहीं होते, कुछ मतलब हर जगह पे मर्द भी बुरे होते हैं और औरतें भी गलत होती हैं। ये बार बार मर्दों को क्रिटिसाइज कर रही थी, मर्द ऐसे होते हैं, मर्द गिफ्टिंग करते हैं, मर्द तमाशा लगाते हैं। अब यहाँ पे हमारे एक बड़े प्यारे मर्द कश्मीरी साहब बैठे हुए हैं, आप ये भी तो बैठे हुए हैं ना, देखें ये दोनों तरह के मामला सुन रहे हैं। इन्होंने मॉडरेटर म्यूट तो ना करे, खुदा की कसम है मुझे म्यूट करना ये किसी मोटिवेटर की ना आपसे है कोई मसला जी। अब देखिए, कश्मीरी भाई को मैं बड़े अच्छे तरीके से जानता हूँ, ये एक अच्छे इंसान है। इन्होंने देखें आपको भी करेज किया, इन्होंने आपको ये भी कहा कि जी आप सिद्धू जट की भी बात सुन लें। आपको कहने का मकसद ये था कि बहुत सारी जगहों पे मर्द भी गलत होते हैं और औरतें भी गलत हो सकती हैं। औरतें कोई दूध की धुली नहीं होती। क्या साहिबा, खुदा की कसम मुझे तो मॉडरेटर म्यूट कर तेरा रहा है। मोटिवेटर है ये यार। आप खुद तो नहीं कर रहे कश्मीरी साहब? और आप नहीं तो नहीं, कर मैं रहे। मोटिवेटर नहीं हूँ, मैं मोटिवेटर नहीं हूँ। ये देखे यार बात करने दें सिद्धू को। अगर अच्छा, मैं इनसे कल ये बात साहब, ये क्यों मुझे म्यूट कर रहे हैं? मुझे आप ये बताएं क्यों म्यूट कर रहे हैं मुझे? मैं कोई मैं गलत है बात कर कौन मोटिवेटर? कौन कौन बनाया हुआ इन्होंने कोई मर्ज़ई मॉडरेटर बनाया होगा, वो मुझे म्यूट कर रहा है। है? बस फिर ठीक है मरदइयां दे काम ही आइंदे ने। चलो जी। अच्छा चलो, अच्छा। आप जारी रखें जी। कल मैंने इनके सामने 2 मिसालें रखना चाहिए, इन्होंने मुझे ना बात ही नहीं करने दी। मैंने इनको कहा कि जी देखें, आप सिर्फ मर्दों को क्रिटिसाइज ना करें, औरतों को भी गलतियां होती हैं, औरत भी गलत हो सकती है। इनको पहले कोई गुस्सा चढ़ा हुआ था। अच्छा, उसके बाद ना मैंने इनका कहा कि जी दुनिया में सब्र की काफ़ी सारी मिसालें मिलती हैं। उनमें मेरे एक शख्स जानने वाले जिनका नाम मामून रशीद था और उनके 4 बच्चे थे, और वो ये मैंने उनको बात बताई। उसके बाद ये इतनी हाइपर हुई है कि इन्होंने कल से मेरे पे भाई जी दौड़ मामून लगाई रशीद है। को लेकर आओ जी, इससे पूछे पता जी वो कौन है मामून रशीद जो इनका मिलने वाला है, मॉडल टाउन का रिहायशी, पता दो उसका भाई। वो मेरा टीचर मैं है। अभी यहाँ पर बैठे हिस्ट्री का। फोन करूंगी, 1 सेकंड, उसका 1 मिनट से पहले पता चल जाएगा, पता दो भी उसका मामून। अच्छा, आप मेरे साथ टाइम डिसाइड कर ले, मैं उनको ले आऊंगा। अच्छा, आप मेरे मेरी साथ time बात decide सुने। कर। नहीं नहीं नहीं, मुझे पता दो मॉडल टाउन का मामून रशीद, मैं खुद पता करूंगी उसका कि क्या एड्रेस है, उसका क्या है, बताए मुझे। मैं आपको कह रहा हूँ कि वो मेरे मॉडल टाउन किस कहाँ पर रहता था वो? मॉडल टाउन में मॉडल टाउन बी ब्लॉक में। कहाँ पर है? बी ब्लॉक में। बी ब्लॉक। क्या नंबर है उसके घर का? अब ये देखें, 100 बंदा ब्रॉड सुन रहा है, मैं अभी किसी बंदे की पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं। मेरी बात मैं उनको सुने यहाँ- जी, मुझे ये बताए, मैं बी ब्लॉक सारे को जानती हूँ। आपको पता लग गया ना मैं किसकी बात कर रहा हूँ, फिर अगर आप जानती हैं तो मैं उसको देखें- यहाँ ले आऊंगा। उनकी कॉल आ गई है। बाकी आपकी जो बात है ना सिद्धू जट साहब, उससे तो कोई शक ही लग रहा है कि आपने ना ये जान के ही कोई बात और की भाई है। मैंने मामून, ये जिनकी बात कर रही है ना वो मामून रशीद कोई और है, मैं जिसकी बात कर रहा हूँ वो कोई और है। ये शायद जिसकी बात कर रही है ना, मैंने सुना हुआ है वो भट्टा स्टॉप वाला कोई नवाब स्ट्रीट के पास रहता था, जिनकी इन्होंने बात शुरू कर दी है। मैं जिसकी बात कर रहा हूँ वो मॉडल टाउन बी ब्लॉक में रहता है और मैं उसको ले भी आऊंगा यहाँ पे। मेरी बात सुन, एक चीज मैं तुम्हें बताऊं, तुम मॉडल टाउन में रही हो? मैं अभी भी मॉडल टाउन में रहता हूँ। अच्छा, मॉडल टाउन में रहते हो तो माशाल्लाह माशाल्लाह। किस ब्लॉक में होते हो? ए ब्लॉक में जी। ए ब्लॉक में, वो जो नहीं है मॉडल टाउन ए ब्लॉक में। मॉडल टाउन ए ब्लॉक में
स्कूल है लड़कों का मॉडल स्कूल, दारे उसके अरकम, साथ क्या है? दारे अरकम स्कूल की बात कर रही हैं? मैं दारे अरकम जो है वो मॉडल टाउन में नहीं है, मैं मॉडल टाउन मॉडल स्कूल जो गवर्नमेंट का स्कूल है लड़कों का, उसके साथ क्या बना हुआ है? क्या मतलब? उसके साथ क्या बना हुआ है? मॉडल टाउन जो स्कूल है लड़कों का गवर्नमेंट का, उसके साथ एक बहुत बड़ी ग्राउंड है जी, उसके साथ कोई ग्राउंड नहीं, नंबर कॉलेज है ना। अब एक सेकंड, एक मिनट कॉलेज के ग्राउंड के एक तरफ मिनट कॉलेज बना एक हुआ है। मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक अब सुन तो लेना, मुझे पाकिस्तान गए हुए भी कुछ जी 5 साल हो गए मुझे। बिल्कुल, वो 10 साल से वैसे ही है, 10 सालों से इसमें कोई कॉलेज change है नहीं ना, आया। कॉलेज अब है ना, एक मिनट हाँ जी। अब एक मिनट उसके गर्ल साथ कॉलेज जी है, गर्ल कॉलेज है। गोरमे यार, बेकरी है, गोरमे ओहो। बेकरी के सामने बिल्कुल क्या है वो बता दो। हाँ, वो 25 साल पहले से है, 12 मुझे साल याद कर लेने दे, कोई मैं अभी 15 साल हो गए हैं गोरमे बेकरी को, ठीक है। ठीक है, और उसके सामने 25 साल से एक चीज है, वो बता दो क्या है? हाँ कुछ भी नहीं है, कुछ भी झूठ बोल रही हैं यार, और कमाल यार ये हो गया। झूठ बोल रही है कश्मीरी भाई। अब मैं और आपको- यार, मैं आपके खुद गया। भाई मेरी बात सुने, मैं आपसे ये जी। बात कर रही हूँ कि गोरमे बेकरी मैं इनको यानी चैलेंज कर रहा मॉडल हूँ, हाई मॉडल ए स्कूल ब्लॉक के में साथ कोई गौरमेंट बेकरी है नहीं। मैं इनको चैलेंज कर गोरमे रहा हूँ, कर बेकरी दें। ए ब्लॉक मॉडल टाउन में नहीं ए है, ब्लॉक मॉडल टाउन और वो मोड़ ए में में। नहीं है, वो सी है, सड़क के उस तरफ सी ब्लॉक ओ आता है। भाई सी ब्लॉक उधर नहीं है, सी ब्लॉक ए ब्लॉक बिल्कुल मेन में, क्लब चौक से मेन- आते हुए डीपीएस से आगे आते हुए, क्या बातें कर रहे हो मेरी बात सुने, स्कूल जी? के साथ अच्छा गर्ल चल कॉलेज है। चल एक मिनट अच्छा सुन लेना, जो एक सड़क मिनट के उस तरफ की आप एक बात मिनट, कर रही है ना, वो एक सी मिनट। ब्लॉक शुरू हो जाता है। मॉडल हाई हाँ स्कूल जी। के सामने क्या है, चलो बता दो। और ये आप मुझसे क्या सवाल करिए, मैं वहां पे सड़कें नापता था। आहा, बात है। वहां पर जी पता अब क्या है, वहां पर है जामिया शरफिया लड़कियों का, तो ये मैंने स्कूल जो है ना, लड़कियों का मशहूर स्कूल का जामिया शरफिया लड़कियों का। अच्छा जी, मुझे ये क्या बता दें, लड़कियों का स्कूल है? झूठ पाकिस्तानी ना बोले। चौक के ऊपर, पाकिस्तानी चौक के ऊपर कौन से स्कूल है? पाकिस्तानी चौक के ऊपर पाकिस्तानी चौक से 35 साल पुराना स्कूल है, अभी तक वहीं पर ही है। पाकिस्तानी चौक के ऊपर कौन सा स्कूल है? ओ एक मिनट रुक तो जाए ना, मुझे याद करने दे। मैं 4 साल पहले पाकिस्तानी अच्छा चौक से किस चलो तरफ जाए? एक मिनट अच्छा रुक जाए ना, पाकिस्तानी एक चौक से मिनट किस चलो, मैं तरफ तुम्हें जाना बहुत है? आसान बताती हूँ, छोड़। पाकिस्तान से आप जा रहे हैं, पाकिस्तानी चौक से यानी मॉडल टाउन से आप जा रहे हैं गुलबर्ग वाली साइड के ऊपर। किस तरफ से जा रहे हैं? एक मिनट एंड के ऊपर यानी कलमा चौक से पहला जो आता है वो कौन सा मोड़ आता है? एक सेकंड आ रहे हैं। कलमा चौक से पहला जो मोड़, कलमा चौक से पहला जो, ओ यार रुक जाए ना यार, कलमा चौक सारा कंस्ट्रक्शन हुआ है, मॉडल कलमा चौक से जो मॉडल टाउन हाँ। को तीन जाता है ना, वो कौन सा मोड़ कर आता है? मैं आपको बताता हूँ, उस पे ना वो राइट साइड पे वो बहुत सारे शादी हाल भी है, मुगल आजम शादी हाल भी है, और वहाँ पे क्या नाम है उसको, क्या नाम बोलते हैं, मेरे ज़हन से चौक का नाम निकल गया। बहुत बड़ी मार्केट है। वो मॉडल टाउन मोड़ है जहाँ मॉडल टाउन से पहला जो चौक आता है, अब सुन ले, आपने उसका पूछा है। मॉडल टाउन मोड़ के सामने बड़ी पार्क है, और लेफ्ट साइड के ऊपर भी नवाज शरीफ वाली जो पार्क है ना, वो सारी लंबी लंबी आती है, वहां पर कोई बाजार कोई चीज नहीं है। अब सुन ले, वो मॉडल टाउन मोड़ कर आता है। अब सुन, एक मिनट है, जी। अब मुझे ये बता कि मैं तुम्हें अब लास्ट मतलब सवाल करने लगी, मुझे ये बताओ कि मॉडल टाउन हम लोग एंटर हो जाते हैं, पाकिस्तानी चौक ये सारा कुछ, हम लोग क्लब चौक से आते हैं, क्लब चौक से टाउनशिप जाते हुए कौन कौन से रास्ते में आते हैं ब्लॉक? क्लब चौक से टाउनशिप जाते हुए क्या क्या आएगा? उम्मे को धोखा देना मुश्किल है भाई। यार एक मिनट ठहर, मैं ना कुछ फ्रूट खा रहा हूँ। ले जी, गूगल कर रहा हूँ, अल्लाह की कसम गूगल नहीं कर रहा, अल्लाह की कसम। कैमरा करके दिखा दूं? ये जी बुझा दो, ओ जी बुझा दो, ए जी ये जी इनका हाल देख ले। मॉडल टाउन जब क्लब चौक से हम टाउनशिप की तरफ जाते हैं तो सबसे पहले जो है ना वो आता है रेडी चौक।
उसके बाद आता है शहीद चौक, वहां पर शहीद चौक के ऊपर 3 बड़े बिकन हाउस के स्कूल हैं। उसके बाद आगे आ जाता है मॉडल टाउन लिंक रोड, जहां पर मतलब सबसे राजा साहब और मतलब वहां पर मशहूर है। और फिर उसके बाद आगे जिस वक्त आप चल जाते हैं तो आ जाता है लाइट्स पे भट्टी चौक, जिसको हम लोग मोचीपुरा भी कहते हैं। वो राइट साइड पे टाउनशिप चला जाता है और फिर उसके आगे चले जाओ तो फैसल टाउन, और ये सारा इलाका जो है लेफ्ट साइड के ऊपर जोहर टाउन आ जाता है। ठीक है जी, इसका आपने अब वाज़ेह पता आपको चल गया कि ये झूठा था, झूठ बोल रहा था, और ये इनकी बकवासियात है। ऐसे ही है। वो जी गोरमे साहब बेकर अब आ जाए आप। अब साहब मुझे बताइए कि ये मुजाहिदीन ये इस्लाम पे सच बोलते होंगे? अस्सलाम वालेकुम। जी जी फरमाएं जी। वालेकुम अस्सलाम। याद है आपने मुझे वो गोरमे बेकर का एक एग्जैक्टली याद कर। अब तू मुझे तो बता, मैं तो उधर खाना खाने गया था, वाकया आपने बता कहा कि था क्या हुआ था, फिर पता चलेगा इनको कि उमेर बाप क्या है और उमेर बाप कौन है। बता ऐसे ही है, क्योंकि गोरमे बेकर पे आपने नहीं, पहले तो मुझे ये बता कि क्या हुआ था। किधर? वो खाना खाने जब गया मैं। हाँ मतलब क्या हुआ था, तुमने मुझे कॉल की, क्या हुआ था? हाँ, मैंने कहा था यार मैं ना मुझे कोई अच्छा ऐसा रेस्टोरेंट बताओ जो बहुत अच्छा मटन बनाता हो। मैं कहीं जा रहा था, कहीं इस तरह हुआ था, तुम अपने दोस्तों के साथ लाहौर घूम। हाँ, दोस्तों के साथ था मैं। ऐसे ही तुमने मुझे कॉल की, तुमने कहा, मैंने पूछा क्या हाल है, तुमने कहा कि खाना देखने चाह रहे हैं, लाहौर आए हुए हैं, घूम फिर रहे हैं। मैंने फिर कहा कि गोमरी में रेस्टोरेंट है, वहां पर जाओ, मजा आ जाएगा तुम्हें खाना खाने का। मैंने तुम्हें वहां पर पता दिया कि फैसल टाउन से तुम गार्डन टाउन वाली साइड पे जाओगे तो राइट साइड के ऊपर आएगा, मार्टर अकबर चौक के बिल्कुल पास ही। वहां पर फिर आप गए, वहां पर आपने खाना खाया। अब बताओ मुझे। हाँ बिल्कुल, तो बिल्कुल ऐसे ही है, खाना खाया और बड़ा लजीज खाना, वाकई उधर का मटन जो था वो बहुत आला था। तो बिल्कुल आपने जो कहा वो बिल्कुल सही था, मैं तो आई विटनेस हूँ। उसके सामने एग्जैक्टली वही इमारत है जो आप बता रही थी ना, वो स्कूल है उसके लेफ्ट साइड के ऊपर। जी बिल्कुल। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो इन्होंने वो भी गलत बताया, मैं बड़ा हैरान हुआ। अगर ये वहाँ के रहायशी है तो इनको कैसे ना पता हो। तो वो बहुत पुरानी इमारत। मोहतरम, मेरी सारी जिंदगी जो है ना मॉडल टाउन में गुजरी है, शादी से पहले भी और शादी के बाद भी। ठीक हो क्या? मेरा बाप एयरफोर्स में था, कुछ अरसा हम लोग कैंट में रहे, फिर हम मॉडल टाउन में आ गए। टाउनशिप में हमारा मदरसा था, और पूरी लाइफ जो है मेरी लाहौर में गुजरी। और मैं सबसे बड़ी बात है कि मैं खुद ड्राइव करती थी। ऐसे ही है। ठीक है, खुद ड्राइव करती थी, इसलिए मुझे एक एक चप्पे का पता है, एक एक चप्पे का। हाँ।